secondary homonym, and basically it refers to species group names only. For example, Sanchi 1909 described the species Tetramorium sylvestri. Emre 1915 described the species Triglotrix sylvestri. Initially, it appeared to be correct, however, then in 1985, therefore, junior secondary homo Triglotrix suggested by the new name Tetromorium teta. This is called basically junior homo and hemi homo. What is hemi? Basically refers to identical names assigned to different taxa subject to different codes. That is where only available and जो हेमी होमोनिम है इसके अंदर आइडेंटिकल लेते हैं किसको स्टूडेंट टैक्सा को available under each. This is called and order wide confusion anonymous and homonym every taxon in which is chosen available name taxon name listed for different taxon. The taxon is done under the provision of national code biological आज दफा टैक्सा को सेम देख सकते हैं लेकिन ऐसा करते नहीं हैं क्योंकि जो कन्फ्यूजन एनोनियम्स और जैसे होती है बचने के जो भी हमारे पास टैक्सॉन होता है हम टैक्सॉन सिंगल नेम देते हैं और वो जो नेम टैक्सॉन को देते हैं वो अवेलेबल जो हमारे नेम्स होते हैं जो टैक्सॉन के उसमें से नेम देते हैं ताकि कन्फ्यूजन हम बच जाएं सिनोनिम जैसे होगी ताकि हमारे पास भी टैक्सा हो उसको हम अगर एक ही नेम दे सकें ताकि हम ये जो नेमिंग है taxon is basically under the provisions of international code of any taxon को नेमिंग देते हैं वो जो भी हमारे पर्सनल zoological नॉर्मल जैसे हम अकॉर्डिंग उसको देंगे अगर हमारा नेम है अगर पर्सनल कोड ऑफ zoology की प्रोविजन करता ऐसा नेम ठीक नहीं करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज डबल होमोनिम genre or homonym belong to groups. The same specific name can be used in both groups. It means have two different genera and they belong to groups. The same specific name can be used for both these groups. For example, Linnaeus gave the name Noctua Linnaeus 1758 to Lepidopteran subgenus. Third, in 1768, Linnaeus established a genus Noctua linnae for birds, overlooking that he had already used this name few years ago in Lepidoptera. Thus, Noctua linnae 1764 that is used for aves is a junior homonym of Noctua linnaeus that he established in 1758 that for Lepidoptera. Next is synonyms. Different available names given to taxon are referred as synonyms. The concept of synonymy applies to names subject to the same code because names unavailable under the code are not considered synonyms. Synonyms are different scientific names that relate to the same taxon. For example, the two names for the same species. The rule of zoological nomenclature is that first name to be published is the senior synonym and any other junior should not be used. यानी जो हमारे पास
डिफरेंट अवेलेबल नेम जो हम किसी भी टैक्सॉन को देते हैं हम उसको सेम कहते हैं। और जो कंसेप्ट सिनोनिम का वो सेम कोड है बिकॉज नेम्स अवेलेबल अंडर द कोड के तो हम उनको कंसीडर नहीं करेंगे। और सिनोनिम्स बेसिकली डिफरेंट साइंटिफिक नेम्स होते हैं दैट आर बेसिकली रिलेट टू द सेम टैक्सा। फॉर एग्जांपल नेम फॉर द सेम स्पीशीज and according to zoological nomenclature rules, a species can attract different names at a particular time. That's why the rule of zoological nomenclature in this case is that the first name to be published is the senior synonym जो first publish होगा वो उसका senior synonym होगा और जो बाद में publish होगा हम उसको junior सिनोनिम्स कहेंगे। और जो सेकंड टाइम जो या जूनियर सिनोनिम्स होगा वो हम यूज़ नहीं करेंगे। अगर एक स्पीशी के एट ए टाइम अप टू डिफरेंट सिनोनिम्स हैं तो फिर हम उसमें से ज़ूलॉजी का नॉमेनक्लेचर के रूट के अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करते हैं और उसमें से जो नेम फर्स्ट पब्लिश होता है हम उसको सीनियर सिनोनिम कहेंगे और वही उसका नेम होगा। जो सेकंड नेम होगा जो बाद के अंदर पब्लिश होगा हम उसको जूनियर सिनोनिम कहेंगे और वो यूज़ नहीं होगा क्योंकि ज़ूलॉजिकल जो हम नॉर्मल पेज यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग किसी भी स्पीशी का एक टाइम के अंदर एक नेम हो सकता है। नेक्स्ट इज एंड द सिनोनिम्स मे बी क्लासिफाइड एज अंडर सब्जेक्टिव सिनोनिम्स। सब्जेक्टिव सिनोनिम्स आर डिफरेंट नेम दैट हैव बीन अप्लाइड टू अ टैक्सॉन एज डिटरमिन्ड बाय टैक्सोनॉमी स्टार सिस्टम। This means suggestive names are basically different names that are applied to a particular taxa and which is actually determined by a taxonomist or systematics. The concept of subjective synonym is fundamentally different in rank-based and circumscription-based, while in hierarchy-based nomenclature is simply does not exist. An example would include species originally described as distinct but were later determined by professionals in the field that they are the same species. That is Campostoma sotum जॉर्ड इन 1856। तो उसके अंदर फिर हम देखते हैं कि जो डिफरेंट नेम दिए जाते हैं एक स्पीशी को टू डिफरेंट साइंटिस्ट से तो उसको फिर हम सब्जेक्टिव सिनोनिम से उसको सॉल्व करते हैं। और जो कंसेप्ट सब्जेक्टिव सिनोनिम का है वो जो हमारे पास रैंक बेस्ड और डिसीजन बेस्ड है उसके अंदर उसका जो रोल है वो डिफरेंट है। जबकि जो हम हायरार्की बेस्ड नॉमेनक्लेचर करते हैं उसके अंदर ये बेसिकली ये एग्जिस्ट ही नहीं करता रोल। और ये कंडीशन हमारे पास कब अराइज होती है ये उस वक्त होती है कि जो हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट एक स्पीशी को जो है ना उसको डिफरेंट स्पीशी कंसीडर करके उनको उनकी नेमिंग करते हैं। और जब लेटर पीरियड के अंदर जो है कोई और साइंटिस्ट उसके ऊपर काम करता है तो फिर वो उसको एक ही स्पीशी कंसीडर करता है तो फिर जो है उसके केस के अंदर ये यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास जो example would include two species originally described as distinct species which were later determined by professionals in the field that they are the same species, that is Campostoma nosotum, that were discovered by George in 1856. Subjective invalid synonyms, it includes names that have been made invalid because of a decision that is a matter of opinion। यानी सब्जेक्टिव इनवैलिड सिनोनिम्स वो होंगे जो जो इनवैलिड होंगे और उसके रीज़न वो डिसीजन होगी जिसके अंदर किसी भी ओपिनियन उस मैटर के ऊपर जो ओपिनियन होगी उसकी बेस के ऊपर वो सब्जेक्टिव इनवैलिड नेम हमारे पास आ जाएगा। Junior subjective synonyms, these are different types uh, thought to be belong to the same taxon. A junior subjective synonym is one which has decided described at a later date. For example, a taxonomist might compare the types for two different names. The two specimens look slightly different from each other, but the taxonomist
decides that these two are actually the same species. He therefore makes more recent name a junior subjective synonym, and this is a subjective decision because the other taxonomist may have a different opinion, and he decided that these types are of different species. For example, Carrier lacca in 1782 is the accepted name for lag insect. Its major synonym are Lacifera lacca, Criteria lacca, and Tacardia lacca. However, the oldest name Kera lacca is back in use. यानी जो हमारे पास जूनियर सब्जेक्टिव सिनोनिम्स हैं वो हमारे पास कब उनका केस आता है कि जब हमारे पास कोई भी जो इशू है वो ओपिनियन बेस्ड हो किसी भी स्पीशी के बारे में। और बाज़ दफ़ा क्या हो सकता है कि जो हमारे पास स्पीशीज़ होती हैं, बाज़ साइंटिस्ट कहते हैं कि वो एक ही स्पीशी है, और बाज़ साइंटिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि जब वो उसको कंपेयर करते हैं तो वो कहते हैं कि जो जो साइंटिस्ट ने एक स्पीशी कही है ये एक स्पीशी नहीं है, ये क्या है, वो डिफरेंट स्पीशी है। तो जब हमारे पास किसी भी स्पीशीज़ के बारे में जो है वो एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाए कि वो एक स्पीशी है या दूसरी स्पीशी है, तो फिर उस केस के अंदर जूनियर सब्जेक्टिव सिनोनिम्स हम यूज़ करते हैं, और उसके बेस पे ऊपर जो हमारे पास रीसेंट नेम होगा जो है वो यूज़ नहीं होगा, और जो हमारे पास ओल्ड नेम होगा वही हमारे पास क्या होगा, वो यूज़ होगा। और इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो भी हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं उनके अंदर पोलीमॉर्फिज्म होती है, उनके मेल और फीमेल के अंदर टू मच सम एक्सटेंट डिफरेंस होता है। तो बाज़ दफ़ा किसी भी स्पीशी की जो डिफरेंट पॉपुलेशन डिफरेंट एरियाज़ के अंदर रह रही होती हैं तो उनके अंदर भी उस एरिया के हिसाब से क्या होता है, उनके अंदर थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है। So it is not possible that each species, all members of a species are basically similar in appearance, because they have variation, they have mutation, and they have different recombinations in them, due to which their phenotype may be slightly different from other members of that particular type of species. That's why when we look them phenotypically, they slightly have differences in their appearance. तो सम टाइम इट हैपन कि जो हमारे पास एक स्पीशी है उसको डिफरेंट साइंटिस्ट दो स्पीशीज़ कंसिडर कर रहे होते हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि टू डिफरेंट स्पीशीज़ को बाज़ साइंटिस्ट एक कंसिडर कर रहे होते हैं। तो जब हमारे क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास नॉलेज अपडेट होता है तो हम ज़्यादा ड्रेस्टिकली या ज़्यादा अच्छे तरीके से जो स्पीशीज़ हैं हम उनके करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर सकते हैं, और बेसिकली जो हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ को करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से डिवाइड करते हैं वो बेसिकली उनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। और जब हम हमारे पास जो भी स्पीशी की करेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा अच्छे अंदाज में हम उनको अंडरस्टैंड करेंगे विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, देन वी कैन ईजीली एंड correctly define their taxonomic ranks। तो बाज़ दफ़ा जो साइंटिस्ट एक स्पीशी को टू डिफरेंट स्पीशीज़ कह रहे होते हैं और बाज़ टू डिफरेंट को एक कह रहे होते हैं, तो उस केस के अंदर ये जूनियर सब्जेक्टिव सिनोनिम्स हम यूज़ करते हैं। और जब हमारे पास एक टू स्पेसिमेंस जो है वो डिफरेंट हों और जो अदर टैक्सोनोमिस्ट हों वो एक ही स्पीशी कंसिडर कर रहे हों, तो फिर उसमें से हम जूनियर सब्जेक्टिव सिनोनिम्स को यूज़ करेंगे, और उनमें से जो रिसेंट होगा वो माइनस हो जाएगा, और जो ओल्ड वन नेम होगा हम उसी को क्या करेंगे, उसी को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज nominotypical subspecies and subspecies antonyms. In zoological nomenclature, when a species is split into subspecies, the originally described population is retained as the nominotypical subspecies or nominate subspecies, which repeats the same name as the species. For example, Motacilla alba alba is the nominotypical subspecies of white wagtail, and that is Motacilla alba. The repetition of species name is referred to in botanical nomenclature as the subspecies autonym and subspecies as the autonym subspecies. And next is amendation. Basically, amendation refers to available name whose spelling has been intentionally changed. यानी amendation हम किस चीज़ को कहते हैं कि जो हमारे पास अवेलेबल नेम हो और उस अवेलेबल नेम के जो
स्पेलिंग ये हम खुद चेंज करें तो हम इस प्रोसेस को अमेंडेशन कहते हैं। एंड द मैंडेटरी करेक्शन ऑफ एन incorrect original spelling containing diacritical marks, hyphens. A justified name is compatible with a name status of valid, temporary, or synonym. And what is unjustified? Intentional change in the original spelling of the name that is not justified is not approved officially. यानी जो हमारे पास इंटेंशनल चेंज हम करते हैं किसी भी स्पेलिंग वर्ड के ओरिजिनल नेम की जो स्पेलिंग है तो हम उसको वो जस्टिफाई नहीं होता ऑफिशियली, और ऐसे नेम को ऐसे चेंज को हम अनजस्टिफाइड चेंज कहेंगे। और अनअवेलेबल क्या होगा? ए नेम दैट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड इट मे फॉल अंडर फॉलोइंग कैटेगरीज। और जो हमारे पास अनअवेलेबल नेम होगा, हम अनअवेलेबल नेम ऐसे नेम को कहेंगे जो हमारे पास ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर की जो रूल्स हैं उसको वो फॉलो नहीं कर रहा, तो ऐसे नेम को हम अनअवेलेबल नेम कहेंगे और वो हम ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के अंदर ऐसे नेम को यूज़ नहीं करेंगे। एंड any accidentally misspelled version of previous name, it is compatible only with the name status of synonym. That name is called misspelled name. Incorrectly formed name, a name that does not conform to the International Code of Zoological Nomenclature standard according to its taxonomic rank. यानी इनकरेक्ट फॉर्म नेम हम उस नेम को कहेंगे जो हमारे जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर कोड के स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता। इन अदर वर्ड्स, a name is unavailable because it fails to comfort the rules set out in the International Code of Zoological Nomenclature and thus has the name status of temporary or nomen nudum। यानी जो हमारे पास इनकरेक्ट फॉर्म नेम होगा हम उसको इनकरेक्ट फॉर्म नेम इसलिए कहते हैं कि वो हमारा जो ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर कोड के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको मीट नहीं करता। और अगर कोई भी नेम जो हमारे पास है और ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करता तो ऐसे नेम को हम इनकरेक्ट फॉर्म नेम कहेंगे और वो हम यूज़ नहीं करेंगे। और उसके डिफरेंट फॉर्म हैं। फॉर एग्जांपल अननेसेसरी रिप्लेसमेंट, ए नेम यूज्ड एज नोमन नोवम फॉर वैलिड टैक्सॉन नेम इज कॉल्ड अननेसेसरी रिप्लेसमेंट। And other thing is suppressed by ruling, a name that has been specifically ruled by International Code of Zoological Nomenclature to unavailable is said to be suppressed depending upon the ruling of the name may be partially, totally, conditionally suppressed। यानी बाज़ दफ़ा जो हमारे पास नेम होता है हम उसको स्पेसिफिकली रूल करते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर से, और उसको हम जब अनअवेलेबल करेंगे तो हम कहेंगे कि हम उस नेम को हमने क्या किया है, सप्रेस कर दिया है। or depending upon the ruling of zoological nomenclature, the name may be partially and it may be totally or conditionally suppressed। And there are other types of names, misspelled name, misapplied name, a name used innermostly because the species studied did not actually belong to the taxa which author innermostly considered that they were in। यानी misapplied name ऐसा नेम है जो एक्चुअली ऑथर ने यूज़ नहीं किया था और इनरमोस्टली हम उसको यूज़ करते हैं, तो ऐसे नेम को मिस अप्लाइड नेम कहेंगे। एंड unnamed are those names that a taxon that has not yet been given a name and description description in accepted publication, and unnamed is compatible only with the name status of। And temporary name it is used until valid name is provided, that name is called basically temporary name। And nomen nudum, a new name mentioned without description or indication or figure is a nomen nodum। यानी जो हम न्यू नेम यूज़ कर रहे हैं किसी भी स्पीशी के लिए और उसके लिए हमारे पास कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है, कोई भी इंडिकेशन नहीं है, कि जब कोई भी हमारे पास उसका फिगर नहीं होगा तो वो जो न्यू नेम होगा हम उसको नोमन नोडम कहेंगे।
And Norman Dobium, it is used without sufficient information so that later authors are unavailable to determine the taxa. And Norman Dobium is a dubious name. It is available name but cannot be assigned to a definite taxa due to shortcomings in the original description. That name is called Norman Dobium. यानी नोमियन डोबियम से क्या मुराद है कि जो हमारे पास ओरिजिनल आथर था तो उसने जो नेम दिया उसके अंदर उसने सफिशेंट इंफॉर्मेशन नहीं दी उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पीशी के बारे में। और वो जब उसके बारे में इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देगा तो हम टेक्सोनॉमी के अंदर किसी भी स्पीशी को उस वक्त तक साइंटिफिक नेम नहीं देते जब तक हमारे पास उसकी सारी करेक्टरिस्टिक्स सामने ना हों या हमारे पास उसकी सारी इंफॉर्मेशन या कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड जब तक नहीं होगी हम उसको प्रॉपर नेम नहीं देते। तो बाद ऑफ अ साइंटिस्ट sufficient information that basically necessary to determine the name of a particular taxon is missed, then that name that was given by a particular author is known as dubious name because it does not fulfill the criteria that actually required for naming of a particular taxon. And in this case the name that is used without sufficient information is called nomen dubium. And next is nomen novium. It refers to a new name that is used to replace a valid taxon original name in the event of homonymy. It is compatible only with the name status of a valid temporary or synonym. यानी ये वो नेम है जो रिप्लेस करता है वैलिड टैक्सॉन के ओरिजिनल नेम को और ड्यू टू इवेंट ऑफ होमोनिमी एंड इट इज़ basically compatible only with the name status of valid temporary or synonym. And next is nomen protectum. It is a name given precedence over its unusual senior homonyms or senior homonym which has become a nomen oblitum, and that particular name is called nomen protectum. Nomen oblitum, it refers to the name that has priority of it for a taxon but is not used due to continued usage of widely used and accepted name, and it is compatible with the name status of synonym. It is also known as forgotten name. Novum hybridum, and these are basically the names of hybrid which are generally individuals not populations. Such names have no status in nomenclature. यानी novum hybridum ऐसे names होते हैं जो generally individuals के name होंगे और वो populations के name नहीं होंगे। ऐसे जो name होंगे उनके nomenclature के अंदर role नहीं होगा। Next is Norman Trivale. In the late 1740 Linnaeus began to use a parallel system of naming species with nomina trivalia, and that name is called nomen trivale. Basically जो हमारे पास zoological nomenclature है उसके अंदर हम binomial nomenclature यूज़ करते हैं। बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है कि एक जो हमारे पास स्पीशी हम उसको एक साइंटिफिक नेम देते हैं और जो साइंटिफिक नेम होगा उसका जो फर्स्ट वर्ड होगा वो जीनस होगा और जो सेकंड वर्ड होगा वो स्पीशी होगी और जो फर्स्ट वर्ड होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और जो सेकंड वर्ड है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा और इस सिस्टम को हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम कहते हैं। बट समटाइम्स स्पीशी may have its subspecies name, and that particular name is called nomen trivale, in which a name consists of a genus name, species name, and a subspecies name. And this system was also developed by Linnaeus in late 1740, and this naming of the subspecies is called nomen trivale. Parenthesis in taxonomy, it is conventional to mention the name of a person as suffix who describe the species for the first time, and the name of author describing the particular species is written in parentheses. When species is transferred from one genus to another, it retains its original author and date. Uh, in that particular case we use the parentheses
For example, when a species is placed in a genus different to the one originally named, then the name of author who had described it is placed in brackets, even it is the same author who has described the both. uh, this is basically return parenthesis, यानी हम जो भी हम टैक्सोनॉमी के अंदर जब भी कोई स्पीशी हम पब्लिश करते हैं तो एक तो उसके साथ हम डेट लिखते हैं और दूसरा हम उस स्पीशी के नेम के साथ उस ऑथर का नाम लिखते हैं जिसने उसको डिस्क्राइब किया होता है और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज द value of that particular scientist for the contribution of a particular type of species. तो जब हमारे पास कोई ऐसी स्पीशी हो जिसको एक साइंटिस्ट ने नेम दिया और वो नेम उसका गलत हो और कोई और साइंटिस्ट उसको किसी और जीनस के अंदर मूव करे, तो जो उसका ओरिजिनल आथर होता है और जो उसने उसकी डेट दी होती है, बेशक वो वही आथर हो जिसने उसने दोबारा ठीक भी किया हो, तो फिर भी हम उसका नेम पैरेंथीसिस के अंदर लिखते हैं. फॉर एग्जांपल ब्रोंटोसोरस एक्सेल्सस मार्च 1879 become एप्टोसोरस एक्सेल्स मार्च 1879. Brackets, the date given for a taxonomic study is the date of publication, and if the date printed in original work is incorrect, then the correct name is given in square bracket, that is 1900 as per recommendations of 22A. Fifth of the code birth brackets are omitted in the text. Square brackets are also used to include statements of misidentification, inciting synonym date in round brackets, that is 1869 indicates the correct date of the publication appearing in the work other than on the title page. Asterisk an asterisk associated with a single date implies that some research has been made and the date given is the nearest known. And abbreviation, the generic name when used in the text for the first time is written in full. For example, Rana Tigrana, which can be abbreviated to a single capital letters Rana Tigrana in the subsequent usage in the text. यानी जो हम zoology के nomenclature है उसके अंदर हम एब्रीविएशन का वर्ड कब यूज करते हैं, जब हम किसी भी पेपर के अंदर जब फर्स्ट टाइम स्पीशी साइंटिफिक नेम लिखते हैं, दैट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ ए जीनस एंड स्पीशी नेम and that always written in italic, and when hand written it is underlined. Then it is when it is used for the first time in a paper, the species name and genus name is written in full. But अगर आप उसी पेपर के अंदर आप दोबारा साइंटिफिक उसी स्पीशी का नेम लिख रहे हैं, तो एक दफ़ा जब आप उसका नेम पूरा लिख देते हैं, तो जब आप दोबारा उस पेपर के अंदर आप उस स्पीशी का नेम लिखते हैं, तो फिर आप जीनस का नेम पूरा नहीं लिखते, बल्कि जीनस का फर्स्ट लेटर लिखते हैं और उसको कैपिटल लेटर से शो करके आप उसके आगे फुल स्टॉप डाल के स्पीशी का नेम लिखते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, एब्रीवेशन. और ये जो एब्रीवेशन है, हम जब भी एक दफ़ा टेक्स्ट के अंदर लिखने के बाद जितनी दफ़ा आप स्पीशी का साइंटिफिक नेम लिखेंगे, साइंटिफिक या बायनोमियल नेम लिखेंगे, तो उसके अंदर सिर्फ जीनस का फर्स्ट लेटर होगा जो कैपिटल होगा, और जो उसके साथ फिर एब्रीवेशन आएगा, और फिर उसके साथ हम स्पीशी का नेम लिखेंगे. And punctuation marks, the International Code of Zoological Nomenclature prohibits the use of any punctuation marks between the name of species and author. तो जो इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर है, वो किसी भी जीनस और स्पीशी के नेम के दरमियान पंक्चुएशन को बैन करता है. और अगर आप किसी भी साइंटिफिक नेम के साथ पंक्चुएशन मार्क डाल रहे हैं, तो फिर आपका वो साइंटिफिक नेम अकॉर्डिंग टू code of zoological nomenclature wrong होगा. That's why it is necessary that not to put any punctuation mark between the name of species and author when you use it.
ठीक है। यानी एक तो आपने जीनस और स्पीशी के दरमियान भी नहीं पंक्चुएशन डालनी, और दूसरा यह कि जो आप इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजी का नोमेनक्लेचर प्रोहिबिट्स करती है यूज़ ऑफ एनी पंक्चुएशन मार्क बिटवीन द नेम ऑफ स्पीशी और आथर, और स्पीशी और आथर के नाम के साथ भी आपने पंक्चुएशन मार्क को यूज़ नहीं करना। And comma is always used between author name and the year. For example, uh, Chronophagia Bali Kapoor, comma 1866, full stop. In this case, Kapoor is the original author of the species, and in cases when the author in the other literature make use of full stop, that is Phagocarpus emosi Bazzi, comma 1913, and Phagocarpus emosi full stop Monroe, comma in 1935. This principle that 19 Monroe in 1935 made use of name validity, published for the first time by Bazzi in 1913. No diacritic mark apostrophe ligature should be used in scientific name. And use of Latin propositions in an X, and the Latin propositions is used to connect names of two persons, the second of which is the editor or main author, or a work in which the first author actually gave the name. For example, Dacus Indicus Agarwal in Kapoor denotes the Agarwal was responsible for publication of the name, and D. Indicus in a work edited by Kapoor on otherwise written. And numerical in compound names. Zoological nomenclature does not favor use of numerical, and if a number of numerical adjective or adverb forming a part of compound name is discovered, it is to be written as full word united with the remainder of the name, that is Deci, Melinita, and not uh, 10 lineata, and 7 punctuate is written as septo punctuata. तो हम उसके ये नहीं जो हमारे पास लैटिन के अंदर प्रोपोजिशन यूज़ करते हैं तो हम उसके अंदर डिजिट नहीं लिखते, बल्कि हम उसको हम पूरी उस वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं, और अगर आप उसको लिखेंगे डिजिट की फॉर्म के अंदर तो वो क्या होगा, वो हमारे पास रॉन्ग होगा. These are basically in our 5 lectures we basically discussed different type of principles that we used in zoological nomenclature to make zoological nomenclature stable, to make zoological nomenclature rigid, and make zoological nomenclature more good system of classification. So हमने जो 5 लेक्चर्स हैं इसके अंदर हमने जो ज़ूलॉजी का नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजी नोमेनक्लेचर को डिस्कस किया है, तो इसके अंदर हमने बहुत सारे रूल्स को क्या किया है, डिस्कस किया है. और ये जो रूल्स हमने डिस्कस किए इसका पर्पज़ क्या था कि हम एक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो फिर उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ इश्यूज आते हैं. और अगर हमारे पास सपोज़ हमारे पास जो साइंटिफिक नेम है उसका एक क्राइटेरिया है कि वो बाइनोमियल होना चाहिए. इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर की करैक्टरिस्टिक्स है कि उसके अंदर आप जो नेम यूज़ करेंगे वो क्या होना चाहिए, बाइनोमियल होना चाहिए. तो हम बस जनरली जो हमारा ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर कोड है, जो ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर का जो हमारा सिस्टम है इसके अंदर बाइनोमियल भी यूज़ करते हैं, लेकिन सम केसेस के अंदर हम जो है इसके अंदर ट्राइनोमियल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि लीनियस ने भी क्या किया था, वो यूज़ किया था. तो बेसिकली इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के अंदर वो हमारे सारे प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम यूज़ करके ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर करते हैं, ताकि जो हमारे पास ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर है वो करेक्ट हो. और ये जो ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर हम करते हैं इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि ये हमें एक स्पीशी नेम देगा. एक स्पीशी नेम होगा तो वो पूरी दुनिया के अंदर आइडेंटिफाई होगा, एक ही नेम से आइडेंटिफाई होगा, तो वो हमारे पास कन्फ्यूजन नहीं आएगी. और जब हमारे पास कन्फ्यूजन नहीं आएगी तो हम आसानी से हर स्पीशी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि
हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी हट के अंदर वो एक तो डिस्क्राइब फॉर्म के अंदर है, एक अनडिस्क्राइब फॉर्म के अंदर है। और जब डिस्क्राइब फॉर्म के अंदर है तो वो वाली स्पीशी हैं जो हमने जिनके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो हमें क्या ज़रूरत पेश आए कि हम ज़ूलॉजिकल बाइनोमियल सिस्टम लें ताकि हर स्पीशी का एक नेम हो और पूरी दुनिया के अंदर वो एक स्टैंडर्ड नेम हो। और उसकी रीज़न क्या है कि चूँकि हमारे पास एक तो बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हर स्पीशी को हम अलहदा से जो आके वो जाके स्टडी करें। और दूसरा क्या है, दूसरा यह कि जब हम उनको डिस्कवर करेंगे तो हर इलाके की अपनी लैंग्वेज होगी। आप एक ही हो सकता है पूरी दुनिया के अंदर जब आप एक स्पीशी को बार बार क्या करेंगे, डिस्कवर करेंगे, क्योंकि उनके कॉमन नेम हर लोकेलिटी के अंदर डिफरेंट होंगे। तो इसलिए ये ज़रूरत थी कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम हो जिसके अंदर हम जो है जो हमारे पास स्पीशी हम उसको एक साइंटिफिक नेम दें ताकि जो हमारी एनिमल्स के बारे में कन्फ्यूजन है वो कम हो सके। दूसरा यह है कि हम टेक्सोनोमी के अंदर कोई भी जो वर्क है वो उस वक्त तब उसकी वर्थ नहीं है जब तक वो पब्लिश नहीं होगा। तो हम जो भी बायनोमियल नोमेनक्लेचर करते हैं डिफरेंट स्पीशीज़ की, तो हम उसके अंदर जो भी नेम होगा वो पब्लिश होना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा किसी भी स्पीशी का नेम रखेगा तो वो एक्सेप्ट होगा, बल्कि जो भी किसी भी स्पीशी का साइंटिफिक नेम होगा वो पहले किसी न किसी जर्नल के अंदर पब्लिश होगा। और अगर दो बंदे एक स्पीशी के नेम को कहते हैं कि हम डिफरेंट रखते हैं और वो बिलीव करते हैं कि उन्होंने इसको डिस्कवर किया, तो फिर देखा जाता है कि किसने वो पब्लिश डेटा पहले किया है। जो जिसका पहले होगा वो उसका नेम एक्सेप्टेड होगा, जिसका पहले नहीं हो उसको रिजेक्टेड हो जाएगा। फिर अगर दोनों साइंटिस्ट एक ही टाइम के अंदर उसकी पब्लिकेशन करेंगे तो फिर प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी आएगा। इसके साथ साथ अगर प्रिंसिपल प्रायोरिटी से वो इशू सॉल्व नहीं होगा तो फर्स्ट रिवाइज़र प्रिंसिपल आएगा, जो वो रिवाइज़र होगा वो उस नेम को देखेगा और उसको क्या करेगा, वो कंट्रोल करेगा, और एक नेम उसको करेक्ट होगा और दूसरा नेम क्या हो जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। कि जो हम नेम यूज़ करते हैं वो भी उसके लिए भी डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं कि कैसे आपने साइंटिफिक नेम यूज़ करना है, उन नेम्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन कैसे होनी चाहिए। फिर हमने रूल्स के अंदर देखा कि कैसे आप जीनस का नेम रखते हैं, कैसे आप स्पीशी का नेम रखते हैं। और अगर ये सारी चीज़ें आप पब्लिश नहीं करते और आपका जो भी नेम है अगर वो ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर कोड के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता तो आपका वो जो नेम होगा वो इनकरेक्ट होगा, उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी। और जो ओरिजिनल साइंटिस्ट जो इसको डिस्क्राइब करेगा उसी की इम्पोर्टेंस होगी। और फिर जो वर्ड आप यूज़ करते हैं उसके लिए भी डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं कि आपने कौन कौन से क्राइटेरिया को यूज़ करके कौन सा वर्ड यूज़ करना है। तो जनरली जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो लैटिन और ग्रीक, क्योंकि उस टाइम के ऊपर ग्रीक और लैटिन जो है वो बहुत ज़्यादा साइंस के अंदर डिस्कवरीज कर रहे थे, तो वो बेसिकली अपनी लैंग्वेज को यूज़ कर रहे थे। तो नाउ डेज जो है ना, हम लैटिन और ग्रीक को भी यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ हम किसी और लैंग्वेज से भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो ये साइंटिफिक नोमेनक्लेचर है इसके अंदर जितने साइंटिस्ट की जो इश्यूज़ हैं नेम के हवाले से वो भी ये सॉल्व करता है। अगर वो डिफरेंट साइंटिस्ट डिफरेंट नेम रखते हैं तो अगर वो ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर कोड को वो फॉलो नहीं करते तो वो हम उसको क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। और ये बेसिकली गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं कि कैसे हमने जो ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर करनी है उसके कौन कौन से रूल्स हैं जिससे हम ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर को ज़्यादा स्टेबल बनाते हैं, ताकि हम जो भी स्पीशी है पूरी वर्ल्ड के अंदर उसको एक नेम दें और उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब के उसको एक ही नाम से सारे जानें, ताकि जो हमारे पास कन्फ्यूजन है उसको ख़त्म हो सके और हम बायोडाइवर्सिटी को, उसके रोल को, स्पीशी के रोल को हम ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर आवर टुडे लेक्चर। इफ़ यू हैव